So guys, today's lecture is going to be on DI, but not just any DI. Like we have done caselets, we have done also the fill in the blanks wala DI. Now we are going to the DI that is based purely on visual representation of data. Okay. Let's start off. A few good things and a few bad things about such data. If you are good at understanding data in general, numbers, this will be very easy because this is very simply a visual representation of data where if you are good with figuring out कि क्या ऊपर जा रहा है क्या नीचे जा रहा है there will be at least two questions जो तुम सिर्फ क्वेश्चन देख के ही सॉल्व कर सकोगे सिर्फ ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन देख के but if you're not good at it then a lot of calculation will be required obviously पांच में से तीन क्वेश्चन ऐसे ही होंगे जो कैलकुलेशन बेस्ड होंगे so make sure that you have very good calculation skills in such sums how many of you have solved 10 sums before coming in tell me at least आज तो थोड़े ज्यादा होने चाहिए थे tell me how many of you have legit solved the sums बोलो जल्दी I see only 3 people till now. Five. Sure. Since many people have solved a lot of sums earlier, I just suggest that you solve multiple sums of this kind because that makes the chapter much more understandable. Okay. In this kind of DIs, you will be using mainly the three topics, which are percentages, ratios, and finally you will be using visual logic a lot. Visual logic बहुत ज़्यादा यूज होगा and trust me this is going to save you a lot of time if you are good at it then you're gonna love today's lecture. Chalo, we'll start. First off, we'll start off with the last sum that I put in. I purposely kept it a little easy. Okay. Following pie charts. Okay, wait. I'll just copy and paste this onto the next page altogether. Become easier for you. ये सिर्फ मैं एक ही सम के लिए कर रहा हूँ बाकी सब तुम लोग को आदत लगानी पड़ेगी. As we have been given, there are 6 products. All 6 products have a different share of the sales in the out of the total sales of the company, and you have to figure out the following details that are given in the question. Okay. Now understand this. The total sales have gone from 50,000 to 75,000. So tell me, what is the ratio? What is the ratio? कोई बोलो मुझे. 2:3. 3:2 कैसे हुआ? 50,000 से 75,000 हुआ है ना, तो 2:3. So understand this. इधर 2:3 हो गया है. And if something here changes by 3:2, like यहाँ पे क्वेश्चन हमें क्या दिया? Now understand this. If something here was at 10% and यहाँ पे भी वो 10% पे ही है, so what will be the ratio of that product X? उसका रेशियो क्या हो जाएगा सेल्स का in 2016 and 17? The ratio will again become 2:3 because उनका percentage change नहीं हुआ है. But what if, चलो let's say कि यहाँ पे A was selling 100 products, X was selling 100 products in 2016, तो वो 17 में कितने प्रोडक्ट सेल करेगा? For the same percentage area in the chart, तो वो कितने प्रोडक्ट सेल करेगा? 150. Perfect.
बट दिस इज व्हेन उसका पाई चार्ट में एरिया सेम रहता है. व्हाट इफ द एरिया इज नॉट सेम? व्हाट इफ द एरिया बिकम समथिंग लाइक 4:5? सो व्हाट इफ दैट, मतलब पहले 20% था और 25% हो गया है, तो बोलो पहले 20 था अब 25 हो गया है. दिस इज केस 1 एंड दिस इज केस 2. हाँ, ये केस 1 में दोनों इक्वल थे. केस 2 में दिस इज द परसेंटेज एरिया ऑफ द पाई चार्ट. सो नाउ टेल मी हाउ विल वी कैलकुलेट दिस. एंड पहले ईयर में था उसका सेल 100 प्रोडक्ट्स. समरी टेल मी व्हाट विल डू. हमें जो ओवरऑल प्रोडक्ट्स का दिया है रेशियो हम उससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि अगर वो सेम होता तो वो 3:2 हो जाता. बट वो सेम नहीं है. वो पहले कितना था, 4 पार्ट्स था, अब 5 पार्ट्स हो गया. सो वील हैव टू अगेन मल्टीप्लाई इट बाय द रेशियो दैट इज 5:4. दिस इज हाउ वी विल गेट द आंसर. 25 एंड ये जो भी 12.5 into 3 into 5, 12.5 into 15. This will be the new sales of 2017. ये समझा सबको? नो आशीष, यू आर रॉन्ग. ये समझा गाइस? ओके ग्रेट. चलो लेट्स मूव अहेड. नाउ लेट्स स्ट्रेट अवे गो एंड ये वाला लॉजिक बहुत ध्यान से याद रखना. ओके आशीष, एक्सप्लेन द सेकंड केस अगेन. The overall sales have become 2:3 and product A का sales was 100 in 2016. But पहले जो लेफ्ट साइड का जो चार्ट है, लेफ्ट साइड के चार्ट में एक मिनट अगर शिट सॉरी मेरा लैपटॉप. जो लेफ्ट साइड का चार्ट है इसमें ए का एरिया इज 20% एंड राइट साइड वाले चार्ट में ए का एरिया इज 25%. दिस इज व्हाट आई एम सेइंग. तो फिर अगर ए की सेल्स इन 2016 इज 100 तो 2017 में ए की सेल्स कितनी हो जाएंगी इज व्हाट आई एम आस्किंग. डिड यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन आशीष? ओके, सो नाउ अंडरस्टैंड दिस. हम कैसे करेंगे? You will have to multiply by both the ratios. हमने इधर क्या किया था, हमने सीधा 3/2 से मल्टीप्लाई किया था रेशियो ढूंढने के लिए. We multiplied 10 by 3/2. Here, since the ratios are also different of the percentages, we multiplied also by that ratio. So we'll have to multiply it by how much? 100 into 3/2 into 5/4, because 25/20 na, so that is 5/4. Do you get it? So that is what we will get as this answer. समझ रहे हो आशीष? Yeah. So understand this logic very carefully guys, because ये तुम्हारा सर्कुलर का सबसे इंपॉर्टेंट लॉजिक है. This is what will help you out the most to find the ratio between the two pies and उस हिसाब से सीधा प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट ढूंढने का. इसमें तुम्हें पूरा प्रोडक्ट निकालने की जरूरत नहीं है. इस प्रोडक्ट का इसमें, इस प्रोडक्ट का इसमें निकालने की जरूरत नहीं. You straight away get an answer. I hope everybody understood this. सबको समझा right? Okay. चलो, let's go. Now let's straight away move on to the questions. First question, बोलो. Product A, चलो इधर से प्रोडक्ट A इधर कितना था? 15,000. अरे 15%. एंड यहाँ पे कितना है? 10%. So what is the ratio? 3:2. एंड यहां पे रेशियो कितना है? 2:3. समझ रहे हो मेरी बात? सो टोटल सेल्स बिकेम 3:2 एंड प्रोडक्ट ए का रेशियो बिकेम 2:3. सो इज देयर एनी चेंज? व्हाट इज द ओवरऑल परसेंटेज चेंज इन द सेल्स ऑफ ए? बोलो जल्दी. ऑप्शन 3. इट्स नो इंक्रीज नो डिक्रीज. Let's calculate it also by the normal method. 15% of 50,000 कितना आ जाएगा?
7,500 एंड 10% ऑफ 75,000 कितना हो जाएगा? 7,500. ये समझा गाइस? So the answer remains the same. So with my trick you can straight away use only ratios and you don't have to care about finding the actual value. यहाँ तो ठीक है तुम्हें 50,000 75,000 दिया है, अगर तुम्हें ऐसा कोई वैल्यूज दिया होगा 23600 एंड 47200 and the values will be 24% and here it will be 36%, तो यहाँ पे तो तुम पागल हो जाओगे, बिकॉज इधर रेशियो हो गया इतना, इसका 24% ढूंढो, इसका 36% ढूंढो, वो सब पागल जैसा हो जाओगे. व्हाट यू कैन सिंपली डू इज, रेशियो कितना हो गया 2:1 एंड प्रोडक्ट का रेशियो कितना हो गया 3:2. सो द ओवरऑल एब्सोल्यूट वैल्यू विल बिकम हाउ मच? 3 टाइम्स. समझ गए ये? Did you understand this, guys? Is this not much simpler than actually finding the value in the DI? This saves you a lot of time. Chalo. Let's move on to the second one. What is the percentage increase in sales of F? 14%, right? Bolo. 14% of this 50,000 and 21% of 75,000. Bolo, kitna ho gaya? It has become 3:2 into how much? Into what? Into वापस 3:2. But the percentage increase बोला है ना हमें. So the percentage increase के लिए we'll just see the percentage increase. That is 1/2. क्योंकि इधर ऑलरेडी 2 पार्ट्स थे एंड यहाँ पे तीसरा पार्ट ऐड हुआ है. So that is why we only have to take the increase. That is 1/2 increase. समझ रहे हो गाइस मेरी बात? और लेट्स एक्सप्लेन इट दिस वे बेटर. लेट्स स्ट्रेट अवे कैलकुलेट द परसेंटेजेस. 14% ऑफ 50,000 दैट इज 7,000 and 21% of 75,000 that is how much? What is 21% of 75,000? बोलो. Exactly 15750. ये कितना इंक्रीज है? This is obviously how much increase? This is a more than 100% increase. कितना हो सकता है? इसमें थोड़ा तो लोचा है. नहीं वेट, कुछ तो लोचा है. वेट, 100% 750, 14% of this. Okay, yeah. So we have to yes, 100%. 125. It has to be 125%, more than 100. Because इसका 100% इंक्रीज कितना हो जाएगा? 14,000. एंड ऊपर से कितना इंक्रीज हुआ है? इट हैज इंक्रीज मोर देन दैट. मोर देन दैट बाय हाउ मच? 1750. नाउ 1750 इज हाउ मच? 3500 का आधा. 3500 कितना है? इसका 50%. So that is 25%. So that is why this collectively comes up to 125%. समझ रहे हो? समझा सबको गाइस? गाइस समझा तुम्हें? Great. Let's see the third one. How many products show a decrease in sales? So people, instead of doing that, we will find the actual real new value. That will be 3/2 into 3/2. That will be 9/4. 9/4 is the new value, which is how much increase? That is 225%. So that means it's 125% increase. If you want to use the ratios वाला मेथड तो ये आ जाएगा. ओके, मेरा वाला मेथड में वापस समझाता हूं. पहले कितना था? लेट्स फाइंड द न्यू वैल्यू कितना है. पहले वाला जो भी वैल्यू था एक्स वैल्यू, वो एक्स वैल्यू को कितने से मल्टीप्लाई किया? बिकॉज ऑफ द रेशियोज इट विल बिकम इनटू 3/2 एंड बिकॉज ऑफ एफ का रेशियो इट विल बिकम अगेन इनटू 3/2, राइट?
So what will be the final value? 9 by 4x. So how much is the increase? पहले 1, so this is 1 plus 5 by 4 का increase ना. 1 मतलब पहले का ओरिजिनल वैल्यू, 1 plus 5 by 4x. समझ रहे हो? So 5 by 4x is how much increase? That is a 125% increase. This is my method without calculations. समझा धीरेन? Vipul, 3 by 2 na, I have to find a new value. The new value is higher, the old value is lesser, so that is why the new value will be on top. इसीलिए 3 by 2 करेंगे. And even here f और f में नया वाला वैल्यू हमें ढूंढना है, so that is again 3 by 2. So that is why 3 by 2 आएगा, 2 by 3 नहीं. Take care about this. Okay. How many products show a decrease in sales? Now understand this. What are the chances that there will be a decrease in sales? यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, तो यहाँ पे डिक्रीज होना चाहिए ना. समझ रहे हो? यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, तो जिसमें यहाँ पे इंक्रीज हुआ है वो तो कैंसिल हो जाएगा. सो बी कैंसिल हो गया, सी कैंसिल हो गया, डी हो सकता है, ई हो सकता है, एंड एफ भी कैंसिल हो गया. सो हमारे पास कौन से ऑप्शन है? ए, डी एंड ई. अब वो तीनों को देख लेते हैं. ए, डी एंड ई में कितने कितने हैं? एक मिनट ध्यान से देखो अश्विन, लुक वेरी केयरफुली, यू कांट जस्ट से 3. कौन से 3 की बात कर रहे हो तुम? आर यू सेइंग दैट ए का वैल्यू इंक्रीज हुआ है, सॉरी डिक्रीज हुआ है? ए का वैल्यू वी जस्ट कैलकुलेटेड इज द सेम. समझ रहे हो? ए तो सेम था, सो इसलिए ए गलत हो गया. So now let's calculate D. D कितना हो गया? Into 3 by 2 into 5 by 7. So that is how much? 15 by 14, which is again an increase. नई value ऊपर है. So even D is cancelled. And finally let's check for E. E का value कितना हो जाएगा? 3 by 2 into 5 by 8, which is higher ना, 15 by 16. So पुरानी वैल्यू ज्यादा ऊपर है एंड नई वैल्यू नीचे है. So there is a decrease in only one of them. That is product E. समझा guys? Did you understand this? अब बोलो, पूरे सम में हमने जरा भी कैलकुलेट किया उनका एक्चुअल वैल्यू क्या है फॉर एनी वन? जरा भी जरूरत पड़ी एक्चुअल वैल्यू कैलकुलेट करने की, तो उस हिसाब से ये सम को कितना टाइम लगना चाहिए था? बोलो जल्दी. हेमंत, 2 minutes इज टू मच. ये सम में कुछ समझने जैसा था ही नहीं. यू स्टेट वी जस्ट हैड टू यूज द रेशियो वाला मेथड. 1 minute इज फाइन. 3 क्वेश्चंस 20-25 सेकेंड मैक्स, उसके ऊपर नहीं लगना चाहिए. चलो we move ahead. Dhiren, what are you saying? If this method does not filter out, मतलब क्या है? I don't understand what you're asking, Dhiren. Okay. Now I have purposely taken a sum that is tabular in nature because तुम लोग को यही लगता है कि विजुअल मतलब सिर्फ दिया है वो सब ही आएगा. But understand this that tables में any kind of data, today's lecture is about any kind of DI जहां तुम्हें सारा डेटा दिया है. You have to just find out data from whatever you have been given. ये ना fill in the blank है, ये ना caselet है. Okay, so that is why we are going to start with this set. Again, in this kind of sum, you have to straight away jump on to the questions. सिर्फ questions में ढूंढने बोला है वही ढूंढो, उसके ऊपर का ढूंढो मत. Okay, चलो. How many more students are studying in C divisions of all standards than D divisions of all standards? सीधा addition. Let's start with the addition. Addition का मैंने तुम लोग को ट्रिक बताया है. Somebody tell me C का addition और D का addition फटाफट.
जल्दी बोलो, I'm gonna wait for you guys to tell me and make it fast. कैलकुलेटर नहीं यूज करना है किसी को भी, प्लीज. जल्दी जल्दी जल्दी, बहुत टाइम लग रहा है तुम लोगों को. Okay. So numbers that I've gotten are 1032 and 1017. अब बहुत ध्यान से सुनो. CET में what I always told you, what is the most important thing in CET? Is it time management or what? Tell me, what is the most important thing in CET? Time management is not the most important. So what is it? It is stress management. Stress management का मतलब क्या है? You guys must try to not get tired, right? सही है, तुम लोग को थकान नहीं लगनी चाहिए एंड तक. इसके लिए तुम क्या कर सकोगे? इसके लिए तुम्हें क्या करना चाहिए? You have to do things which will get you as less tired as possible, right? समझे guys? Yes, reduce your brain usage. Now you guys did a very idiotic thing here. Okay, tell me what is 12 minus 27. 12 minus 27 कितना है? Minus 15. What is 27 minus 12? Plus 15. तो बेसिकली लास्ट डिजिट सेम रहता है ना, तो तुम लोग को सिंपली सिर्फ दोनों का लास्ट डिजिट ढूंढना है. इसका लास्ट डिजिट क्या आएगा? 8, 9, 14, 20, 27. इसका लास्ट डिजिट आएगा 7 एंड इसका आएगा 8, 10, 18, 27, 32. इसका आएगा लास्ट डिजिट 2. अब बोलो 7 और 2 है तो सबट्रैक्ट करके लास्ट डिजिट क्या आना चाहिए? Tell me guys, एडिशन करने की जरा भी जरूरत थी? तो गाइस वही है, अगर नंबर सेम रहा तो लास्ट 2 डिजिट ढूंढ लेना हितेश. लास्ट 2 डिजिट्स तो वो लोग सेम नहीं रखेंगे. सो व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट ऐड द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ एवरी नंबर. सो तुम्हें 56, 82, 41, 55, 26 और 57 पे ऐड करना है. दैट इज स्टिल मच इजियर देन एडिंग इवन द थर्ड डिजिट. समझ रहे हो? So that is how we will do this much faster. Now let's do this. Exactly, Hitesh, गधा-मुजरी नहीं करनी है. Second one, what is the total number of boys studying in standard 9th? चलो, standard 9th में total number of boys क्या है? जल्दी.
Yes, that is right. इसमें guys there is no simpler way. You will have to add these. बस सिर्फ एडिशन के लिए तुम थोड़ा सा ट्रिक यूज कर सकते हो. इसको 150 ले लो, इसको 150 ले लो, that is 300. 300 minus 3. इसको ले लो 125 प्लस 1 एंड इसको ले लो 190 माइनस 1. तो जो भी इसका आंसर मिलेगा दैट इंटू 5/9 एंड उसमें -3 कर देना. समझ रहे हो ये? दैट इज 425 525 615 612 divided by 9 and into 5. That is how much? 9 into 68 or whatever. But anyway, so it's basically total इनका 612 है into 5/9 करना है. That will be your answer. So the answer should be this much, 372. नहीं, answer is not 372. 9 into 654 52 into 5. Yes. 25. 340. Yeah. The answer will be 340. So there is no simple way of doing this. ये तुम्हें जट मार के थोड़ा कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा. But it's a simple calculation. You can do it. You can. अगर तुम ऑन पेपर कर रहे हो तो और भी फास्ट हो जाएगा. चलो. How many percentage is the number of students in standard 5 more than that in standard 6? So you will again have to calculate. Standard 5 का टोटल करो, standard 6 का टोटल करो. Now guys, very simple. तुम्हें एक बात समझनी है. स्टैंडर्ड 5 की टोटल करने की जरूरत नहीं है. What have you been told? More than standard 6. तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा? डिनोमिनेटर में भी स्टैंडर्ड 6 का टोटल. The denominator will be standard 6 का total. So you have to just find standard 6 का total and हर एक में बस डिफरेंस देख लो कि standard 5 में कितना हो रहा है. So let's see. तुम लोग पहले standard 6 का total करो, मैं इसका डिफरेंस करता हूँ. This will be how much? Difference is 37. Sorry, 27. 27 plus. Sorry, इधर कम है माइनस. So this is minus 27 plus 30. This is plus 70. And this is minus 26. So कितना हो गया? ये plus 3. This is plus minus 23. 50 minus 23, that is 47. Plus 47. 47 divided by the total of 6. What is the total of standard 6? 616 into 100. ये कैसे ढूंढोगे? What is this? ये कितना परसेंटेज है? ओ ये तो पॉइंट में है, तो हमें ढूंढना पड़ेगा. There is no simple approximation to this. Tell me. बोलो कैसे करोगे? What is an easier way to do this? थोड़ा अप्रोक्सीमेट कर सकते हो. This is 4 into रुक जाओ 4 into 12. 4 into how much? 4 into 1, sorry, 15, 154. Now let's again divide something. 12 into 1, 13. 13 से थोड़ा कम. Now tell me, what is 100 by 13? 100 by 13 कितना है? Do you guys remember what is 1 by 13 का value in percentage? Yes, Ashish, I know that is the right answer. But I am saying कि approximate कैसे करोगे? बोलो जल्दी. 7.69. So 7.69 से थोड़ा कम होना चाहिए. You must understand
कि ये 48 नहीं है, मैंने 48 को अप्रोक्सीमेट किया है। सो 48 को अप्रोक्सीमेट करके मैंने 47 को अप्रोक्सीमेट करके 48 लिया है। सो दैट इज व्हाई द आंसर शुड बी लेस देन व्हाट एवर वी आर गेटिंग। सो इट विल बी 7.69 से थोड़ा कम, and that is how I approximated it to the option 4. समझा guys, how did I approximate it? Because I knew the value of 1/13 and I knew कि मैंने ऊपर का वैल्यू थोड़े से इंक्रीज किया था, so the actual value will be less than the value that I'm getting. That is how we approximate. चलो, in standard 10 all girls are from rural areas. Then how many boys in standard 10 are from rural areas? Yes, Dhaval, you can also do that. You are right. स्टैंडर्ड 10 में सारी लड़कियां रूरल एरियाज की है। सो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द टोटल ऑफ स्टैंडर्ड 10, उसमें से देखो रूरल एरिया के कितने लोग हैं एंड लड़कियां देखो कितने हैं, जो बच गए वो लड़के हैं रूरल एरिया के। चलो फाइंड द टोटल। 200 प्लस 130 330, 330 प्लस इसमें से 15 डालो 200 530, 530 प्लस 142 672। Did you guys understand मैंने कैलकुलेशन फास्ट कैसे किया? हाउ डिड आई ऐड दिस अप सो फास्ट? Did you guys understand from what I was saying कि मैंने एडिशन फास्ट कैसे कर दिया? नो धवल, वैसे नहीं किया मैंने। आई डिडंट यूज लेफ्ट टू राइट वाला मेथड एट ऑल, आई यूज्ड अ टोटली डिफरेंट मेथड। नहीं रजा, एग्जैक्टली हेमंत में वैसे किया। सो व्हाट इट इज, ये 198 है ना, 198 को मैंने 200 बना दिया, मैंने किधर और से 2 निकाल दिया। सो 198 को मैंने 200 लिखा एंड इसको मैंने 130 कर दिया, सो दैट इज 330। सिमिलरली मैंने इसमें 15 ऐड कर दिया बाजू में से, दैट इज 200, तो मेरा टोटल हो गया 530 एंड इसमें से 15 माइनस कर दिया तो 142, सो 142 इसमें ऐड कर दिया, दैट इज 672। दिस इज अ मच फास्टर वे ऑफ एडिशन। ये समझा तुम लोग को गाइस? दिस विल स्पीड अप योर एडिशन मच मोर देन योर नॉर्मल एडिशन। सो या 672 में से इंटू 10/11 10/21 इतनी लड़कियां हैं, सॉरी इतने रूरल एरिया में लोग हैं। सो टेल मी हाउ मच विल दिस बी? 96 3 32 320 320 is the total rural population, and if I want to find the number of girls, so that is 3/8 into 672, so 8 into 8 84, 84 into 3 is how much? 252 exactly। 252 are girls and these are the total rural population. We have been told all the girls are rural girls, so what will be the number of guys who are rural? बोलो जल्दी। 68 exactly। 68 is our answer। And finally last one, in which standards all the girls can be from urban areas? इसका मतलब क्या है? We have to find one जहां पे urban का ratio is greater than the इसका ratio। All the girls can be urban in which standard? तो हम सीधा urban का ratio ढूंढ लेते हैं। urban का ratio is 7/17 in fifth standard, सब standard wise लिख देते हैं, 5th 6th 7th 8th 9th 10th। ओके, फिफ्थ में क्या है? 7/17 and 6/13। But this is the urban का ratio and this is girls का ratio. Tell me which is higher? Tell me which one has to be higher? कौन सा वाला बड़ा होना चाहिए? No Hemant, the big one should be urban। नहीं मतलब कौन सा वाला, for our condition to be right, which one should be higher, वैसा।
समझे? सो द अर्बन हैज टू बी हायर. यहाँ पे क्या है, 6/13 इज ऑब्वियसली हायर देन दिस, सो दैट इज व्हाई दिस इज कैंसल. फिफ्थ में नहीं है. लेट्स चेक 5/14 एंड दिस इज हाउ मच, 4/11. बाद में सारे देख लो. 6/13, 6/17 and 4/7, 3/8, हाँ रूरल अर्बन वन एग्जैक्टली. 3/8 एंड ये वाला क्या है, 7/14, 7/12, 15/34 and 4/9 and finally 11/21 divided and 3/8. अब बोलो किधर किधर कौन सा ज्यादा है, 5/14 ज्यादा है या 4/11 ज्यादा है? बोलो जल्दी. Which one is higher? Okay, Rupal. Tell me the answer guys, इसमें से कौन से ज्यादा है? How many of these are higher? कौन से ऐसे हैं जिसमें urban is greater than girls? बोलो मुझे फटाफट. फिफ्थ वाले में तो नहीं है, तुम लोग मुझे ढूंढ के बोलो. ऑप्शंस पे ध्यान दो. हाँ ऑप्शंस पे ध्यान दो. ओनली एक ऑप्शन ही नहीं है विपुल. एंड ओनली एक कैसे होगा? यहाँ पे दिस इज लेस देन हाफ, यहाँ पे दिस इज मोर देन हाफ, सो ये बड़ा हो गया. सिक्स्थ में देख, कैलकुलेटेड दिस वे, ये हाफ से कितना कम है और ये हाफ से कितना कम है. ये हाफ से 1.5 कम है एंड ये हाफ से 2 कम है. बट लुक एट द रेशियो. टेल मी कितना हो जाएगा? नो हेमंत, यू आर स्टिल रॉन्ग. हाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो. ये हो गया 55 एंड ये 14 इंटू 4 कितना हो गया? 56. सो अगेन दिस इज हायर. सो टेल मी कौन सा वाला है आंसर? विपुल डोंट डू दैट. तो डिनोमिनेटर छोटा बड़ा करेगा तो बहुत टाइम लग जाएगा. क्रॉस मल्टीप्लाई बेस्ट है. So we got all the answers. Guys, सबको समझा पहला सेट? Did everybody understand the first set? A clear example कि अगर तुम्हारा कैलकुलेशन अच्छा है तो DI इजी हो जाएगा. आज के सारे सेट्स मैंने उसी हिसाब से ढूंढे. They will be. Hitesh, this is B type. In fact, there are a few questions which are A type. पूरा सेट B type A type मत गिन लो. Make sure कि तुम questions के हिसाब से देख रहे हो. There are a few questions which were very doable. आराम से. जैसे पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन काफी डुएबल थे तो वो ए टाइप में हो जाएंगे. बाद में इफ यू कैलकुलेट दिस वन, फिफ्थ वन वाज बी टाइप, दिस वाज बी, दिस वाज ए, दिस वाज बी एंड बाकी दोनों ए थे. Yes, Rohit, हर सम के लिए ट्रिक अलग अलग होगा. There is no single trick that I can use in any DI. एक ट्रिक है ही नहीं. You will have multiple tricks for everyone because सारे में कैलकुलेशन अलग होगा.
all you can do is just keep your calculation ekdam high. Calculation will be your savior in DI. Sorry. समझ रहे हो? चलो, we'll move on to the second DI. A great DI actually. Second वाला बहुत बढ़िया. The number of selected employees in different grades ranks by 3 companies during 2012. ये इतने एम्प्लॉय सिलेक्ट हुए हैं, कंपनी ए बी सी 3 कंपनीज है. लेट्स चेक. What is the respective ratio for selected employees for the post of marketing manager for the companies A, B and C together? रेशियो ढूंढना है ए बी सी के मार्केटिंग मैनेजर का. तो देख लो, ए का क्या है? ए इज 650, B is 700 and C is 550. मार्केटिंग मैनेजर के लिए ना रेशियो क्या आ जाएगा? Very simply guys, don't like idiots go and look at the questions. Don't find the ratio. सीधा देखो रेशियो क्या आ जाएगा. 30, ये 13 के टेबल में आता है ना, तो 13 वाला ही चेक करो. ये 11 और 12 दोनों के टेबल में नहीं आता है. So 13:14:11 सूट हो रहा है. अगर हो रहा है तो अपना आंसर यही है. Exactly, that is option 3. Now we are going to move the lecture very fast. अरे what percentage is the number of selected employees for assistant finance manager by C less than the total IT managers for all company? Assistant manager of C कितना कम है total IT manager से? Assistant manager of C, रुको, असिस्टेंट फिनेंस मैनेजर ये है. अच्छा, ये थोड़ा मैं ऊपर मूव कर देता हूँ इसको. असिस्टेंट फिनेंस मैनेजर ऑफ सी कितने हैं बोलो. व्हाट इज द असिस्टेंट फिनेंस मैनेजर ऑफ सी का नंबर? 350. And we have to compare this by what? We have to compare this by the IT managers for all companies. Total तीनों कंपनीज के IT managers कितने हैं? 850. So this is how much less? How much is this less? 500 by 850 ना? Into 100 कर दो. सीधा चालू करो. Into 10 into 19. 100 by 19. 19 का रेशियो बोलो कितना है? What is 1 by 19 percentage wise? वन बाय 19 कितना है बोलो जल्दी. एग्जैक्टली 5.26. नहीं 5.26 नहीं है. हेमंत चेक अगेन. एंड तुम लोग भी मेरे उसमें आ गए. मैंने मिस्टेक किया था. 1/17 है, तो 1/17 का रेशियो ढूंढो. क्या तुम लोग कुछ भी. व्हाट इज 1/17? 5.88 सही है. तो 5.88 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, विल गेट 58 पॉइंट समथिंग. यस, 58.82. समझे? चलो, लेट्स मूव अहेड. What is the approximate average number of selected employees by company B in all grades taken together? कंपनी बी का एवरेज ढूंढना है. तो नंबर्स क्या है कंपनी बी के? 200, 400, 200. देख लो, टोटल 800, 800 प्लस 400, वापस कितना? 1200, 1200 प्लस 700, 1900 प्लस 700, 2600. 2600 डिवाइडेड बाय हाउ मच? 6. कितना आ जाएगा? 2600 डिवाइडेड बाय 6 इज क्या? 450.
धीरेन कैलकुलेशन तेरा एकदम कचरे में गया है. यस. 433 is the answer. Whoever said 433, you are right. विपुल तू 450 430 नहीं कर सकता है. एंड धीरेन तू तो कुछ भी बोल रहा था, एकदम हवा में बात कर रहा था. चलो लेट्स मूव अहेड. What the respective ratio of the total selected employees for all grades by three companies A, B and C? Total. So what will you do? ये देख लो, सबका पहला वाला नंबर देख लेते हैं क्या है, या फिर सब में अलग वाला नंबर देख लेते क्या है. लेट्स सी द लास्ट वन. गाइस ये देखो, हम हाउ एम आई डूइंग. आई एम लुकिंग एट द ऑप्शंस फर्स्ट. मैं पहले ऑप्शंस देख रहा हूं. ऑप्शंस में अगर मैंने पहला वाला सिलेक्ट किया तो कंफ्यूजिंग हो सकता है, बिकॉज 27 9 3 तीनों के सेम टेबल आते हैं. सेकेंड वाला सिलेक्ट किया तो क्या हो जाएगा, 26 13 13 13 वापस सेम टेबल आ सकता है. बट लास्ट नंबर देखो, लास्ट नंबर इज 27 9 26 11. ज्यादा अलग अलग नंबर है ना. हाँ बच्चा, ज्यादा अलग अलग नंबर है ना, तो इसलिए विल ट्राई फाइंडिंग स्ट्रेट अवे सी का वैल्यू. लेट्स फाइंड सी का वैल्यू. सी का टोटल कितना, हमें बी का वैल्यू तो पता है 2600 है, तो अब सी का वैल्यू देख लेते हैं. सिर्फ 450 750 1250 1900 2700 2700 का वैल्यू है सी का. सो लेट्स सी इनका रेशियो कितना है, 26 27. ऐसा कोई है रेशियो? हाँ ये रहा ऑप्शन है, इज द सेफेस्ट ऑप्शन. एंड अगर तुम्हें ज्यादा सेफ रहना है तो ए का भी टोटल कर ही दो. इट इज 250 650 650 प्लस 350 1000 1550 2200 एंड वापस ये 400 नहीं, इधर 350 की जगह पे 400 आएगा. सो ए का भी वैल्यू कितना आ गया, 2700. समझे? सो द रेशियो इज व्हाट, 27 26 27. दैट इज द रेशियो. समझा सबको गाइस? Did everybody understand it here? Okay. 10th one. Find out what is the 10th one. 10th one I'm not gonna help you. It is 222 चिंदी. 10th वाला रुको, तुम लोग ढूंढो. सी के कौन से मैनेजर्स ढूंढने हैं? Marketing managers of C. That is how much. Marketing managers of C are 550. You have to find how much is 550 out of 2700. बोलो कितना परसेंटेज हो जाएगा? हेमंत नहीं, यू आर रॉन्ग हियर. रोहित अप्रॉक्स 20 नहीं बोले, 20 से थोड़ा ज्यादा. यू मस्ट से 20 से थोड़ा ज्यादा, बिकॉज अप्रॉक्स 20 कैन ऑल्सो बी 19.73. धवल तू गलत है. अगर 21% बोला ना, 21% विल बी हाउ मच, 540 प्लस 27 567. 21% बहुत ज्यादा हो गया. वी हैव एन ऑप्शन हियर दैट इज 20.3, बिकॉज 27 इंटू 20 कितना हो जाएगा, 540. एंड ऊपर से बस 10 बचा है, विच इज अबाउट 1/3, बिकॉज द नंबर इज 27. 27 का 1/3 इज 9, सो दैट इज 20.3. हेमंत ऐसा नहीं कर सकते. यू हैव टू लुक एट द ऑप्शंस एंड यूज ऑलवेज. अगर ऑप्शन है तो यूज करो, अपना फायदा ही है. गाइस बोलो अब ये सेट कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा, ए बी सी? एग्जैक्टली, कैटेगरी ए. चलो लेट्स मूव अहेड. Amazing sum. I love this sum, absolutely. A lot of calculation, and the best thing is, even better thing is,
तुम्हें कैलकुलेशन समझना चाहिए कि कैसे करोगे. ओके गाइस लेट्स स्टार्ट. सॉरी यार 2 मिनट से. बेसी जाओ शांति की, बेसी जाओ बच्चा, शांति की बेसी जाओ. आई एम सॉरी, मेरा डॉग थोड़ा आके मेरा मुंह चाट रहा था तो चलो गाइस विल स्टार्ट. नाउ अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली, वेरी केयरफुली. वापस हम सीधा क्वेश्चन पाई चार्ट छोड़ो, सीधा क्वेश्चन पे जंप मारते हैं. If the number of tourists from China was 9,000, then find the number of tourists from Nepal of age 16 to 30. Okay? Number of tourists from China was 9,000. So straight away ये ढूंढो. If 15 is 9,000, तो how much will be 18? फटाफट बोलो. क्या 162? कुछ भी बोल रहा है क्या? हितेश 1080 कैसे होगा? Okay, let's make it even simple. Let's straight away find out. What do we have to find? Nepal के age group 16 by 30. That is how much? 16 by 30. That is 18%. So we have to find 18 by 100 of what? Of 9,000 into 18 by 15. ये समझा तुम लोगों को मैंने क्या किया है? Did you guys understand what have I done? Okay, मैंने थोड़ा एक स्टेप स्किप किया. मुझे क्या ढूंढना है? मुझे पहले नेपाल का वैल्यू ढूंढना है ना. आई हैव टू फर्स्ट फाइंड नेपाल का वैल्यू. तो नेपाल का वैल्यू क्या होगा? इफ दिस इज 18, 18 का वैल्यू नहीं पता है. मुझे पता है 15 का वैल्यू इज 9,000. सो नेपाल का वैल्यू इज x. सो x विल बी हाउ मच? 9,000 इंटू 18 बाई 15. एंड बाद में मुझे क्या ढूंढना है? नेपाल में से एज ग्रुप 16 बाई 30 का कितना है? सो 16 बाई 30 इज हाउ मच? 18%. दैट इज 18 बाई 100 इंटू x. समझ रहे हो? तो मैंने सीधा x का वैल्यू इधर ही सब्स्टिट्यूट कर दिया. आई स्ट्रेट अवे टुक इट एज वन सिंपल इक्वेशन. दैट इज 18 बाई 100 इंटू 9,000 इंटू 18 बाई 15. धवल प्लीज एनोटेशन मत कर. अब समझा? जिसको भी नहीं समझा तो आप समझा क्या? हेमंत अब समझा तुम्हें मैंने क्या किया? So now we simply have to do 18 square. 18 square into 6. What is 18 square? 18 square कितना होता है? Exactly 324 into 6. 1800 plus 120 plus 24. That is 1944. Simple. हाँ हितेश तू कर सकता है, पर मैंने 10800 ढूंढा ही नहीं. आई डेंट फाइंड दिस वैल्यू ओनली. मैंने वो ढूंढने की ट्राई भी नहीं की. जरूरत क्या है करने की? सीधा अगर इक्वेशन में कट किट होकर हो जाता है सम, तो जरूरत नहीं है. See Ashish, that is much better. So guys tell me, was this sum looking very tough? Because इतने सारे दो पैराग्राफ्स दिए हैं, sorry दो पाई चार्ट दिए हैं. This looks very tough, but is it tough actually when you solve the question in this way? It becomes very simple. समझ लो मेरी बात guys?
just give me a minute. I'll be back. Sorry about that. Yeah. So guys, don't get worried when you have a lot of data. A lot of data, actually, if you know how to use the data, makes the sum much easier, because then you can play around with numbers much better. Chalo, let's move on to the second question. Yeah, sorry about that, guys. My dog was barking. Chalo. Find the ratio of tourist age group 46 to 60 from Japan to the age group 16 to 30 from USA if the number of tourists from UK was 70 to 100. Guys, tell me ये sum में क्या करना है? Please tell me what is to be done in this sum. I want to look at your answers. How will you do this sum? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो. Do we have to use the UK 70 to 100 का value? Do we have to use this value? That has just been given to confuse us. We don't have to find the actual value at all. तुम जापान to यूएस का एक्चुअल देखो कितना है. यूएसए का 25 है एंड जापान का कितना है 10. Keep them as 10 and 25 is what I'm saying. 10 और 25 ही रखो. तुम्हें वो यूज करने की जरूरत ही नहीं है. मैं बताता हूँ कैसे. 25 में से यूएसए का 16/30 का कितना आएगा 18%. 18/4 हो जाएगा 25% मतलब. समझ लो मेरी बात गाइस. और लेट्स टेक दिस, इसको हम 100 कर देते हैं तो इसका कितना हो जाएगा. अगर इसको 100 कर दिया तो दिस विल बिकम 40. इफ यूएसए इज 100 सो जापान बिकम्स 40. एंड यूएसए का हमें कितना पॉपुलेशन लेना है. यूएसए का 16/30 का पॉपुलेशन दैट इज 18. सो इसमें से आएगा 18 एंड जापान का कौन सा लेना है 46/60 दैट इज 20%. सो इसका 20% विल बिकम 8. सो द रेशियो इज 8/18 दैट इज 4/9. बोलो. The UK वाला value was just given to confuse you so that you will actually find the values पे किसका value क्या क्या है. समझे मेरी बात. And trust me, I have seen you guys solve DI myself कि तुम लोग ये करते हो. हेमंत, जापान का वैल्यू हमें दिया है 10% ना, एंड यूएसए का वैल्यू 25%. सो मैंने दोनों को अज्यूम किया. मैंने यूएसए को अज्यूम किया कि इट इज 100 तो जापान का वैल्यू विल बिकम 40 बिकॉज दोनों इंटू 4 हो जाएंगे. सो नाउ यूएसए का 16/30 का पॉपुलेशन इज हाउ मच 18% ऑफ द टोटल थिंग. सो यूएसए का पॉपुलेशन इज 18 एंड हमें जापान का 46/60 का पॉपुलेशन ढूंढना है. तो 46 to 60 का पॉपुलेशन है हाउ मच 20%. 20% of 40. So 20% of 40 is 8. So that is why the ratio 4/9. समझे रोहित? Sorry, समझे हेमंत? चलो, let's move ahead. हाँ, इधर वैसा भी कर सकते हो, पर मैंने वैसा किया नहीं. I find this much easier. If total tourist of China of age 60 plus was 1500, find a total tourist from Russia. सेम लॉजिक हम लगाएंगे. चाइना के टोटल 60 प्लस पॉपुलेशन कितना है. चाइना का पॉपुलेशन कितना है 15% ऑफ द टोटल इज चाइना का पॉपुलेशन एंड उसमें से 10% इज 60 प्लस. सो दैट इज 1.5% ऑफ द ओवरऑल वैल्यू. 1.5 of overall is how much 1500. मतलब जो भी इंटू 1000 हो रहा है ना, तो रशिया का टोटल पॉपुलेशन बोला है तो कितना हो जाएगा इंटू 1000 करके. व्हाट बी रशिया का टोटल पॉपुलेशन 20,000.
Exactly. Very simple. Now, a tourist from Nepal of age group 31 to 45 is what percent of total number of tourists? If the tourist of that age group from Russia was 700. 31 to 45. तो पहले हम ओवरऑल ढूंढ लेते हैं. 31 to 45 of Russia is 700. So 31 to 45 कितना है? 35% of 20, that is 7. If 7 equals to 700, so total कितना हो गया? हर एक चीज 100 से मल्टीप्लाई हो रही है ना. So let's straight away find what is this? नेपाल का 31 to 45. What is नेपाल का 31 to 45 का पॉपुलेशन? 18% into 35%. कितना हो जाएगा? What is 18% का 35%? बोलो जल्दी. एग्जैक्टली 6.3. तो 6.3 को हम इंटू 100 कर देंगे. सो वी गेट द आंसर. सॉरी 6.100 करने की जरूरत भी नहीं है, हमें आ गया आंसर सीधा. 6.3% ऑफ द ओवरऑल पॉपुलेशन. समझे साहब? डिड यू गाइस अंडरस्टैंड? चलो. एंड 15th one. If total tourists from all countries was 10,000, what is the average number of tourists from all countries of age group 16 to 30? 16 to 30 का देख लेते हैं. 18%. इनफैक्ट ये सब बहुत हिंदी है. 18% of overall population will be 16 by 30. So that is how much? 1800 divided by 6. Because 6 countries है ना. So the answer is 300. ये समझा सबको? They tried to make the sum confusing, but actually it was very easy. वैष्णवी ने, this is the first message that I've gotten. क्या लिख रही हो तुम? राइटिंग आंसर्स. हाँ समझ रहा है, आंसर सही है. अच्छा गाइस, सबको समझा? हाउ डिड आई गेट 300 फॉर द लास्ट वन? समझा सबको पूरा सम? अगेन टेल मी, व्हिच कैटेगरी डज दिस सम कम अंडर? कौन सी कैटेगरी में आएगा? एग्जैक्टली, इट विल कम अगेन अंडर एन ए कैटेगरी. चलो, बट गाइस अंडरस्टैंड, हम अब तक सम का प्रॉपर कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं. समझ रहे हो तुम मेरी बात? वी आर नॉट प्रॉपरली कैलकुलेटिंग द सम. वी आर स्ट्रेट अवे यूजिंग आवर मेथड. वी आर ओनली यूजिंग रेशियोज टू फाइंड द आंसर. इज दिस नॉट सेविंग मच मोर टाइम? ये मतलब आधे टाइम में नहीं हो रहा है, नॉर्मली जितने में होता है उतने में. So please get used to this. That is why I said in this whole kind of DI, the most important thing will be percentages and ratio. So please make sure that you are doing these two topics very well. Akash, please just once try and going back and looking at the recording. It is a very easy sum. अगर नहीं समझा तो वापस मुझे पूछो. ओके चलो. सेट 5. अच्छा, सेट 5 मैं बोलता हूं कि हम थोड़ा इसको इधर ले लेते हैं, क्वेश्चंस को. मैंने बस एक पेज पे ले लिया है. सो फॉर ईज ऑफ एक्सेस मैंने एक पेज पे ले लिया है. ये चलेगा ना गाइस? सबको दिख रहा है ना मैंने क्या किया है? इज एवरीबडी एबल टू अंडरस्टैंड? दिस इज जस्ट फॉर ईज ऑफ एक्सेस. मैंने ऐसा कर दिया है, तो मैं खाली बोलूंगा पेज आगे पीछे करना पड़ेगा. ओके चलो, लेट्स मूव अहेड.
These are employees in various departments. This is the total number of employees is 3250, and this is the ratio. The number of men in marketing is, yes ये रेशियो है, that is 4:1 का रेशियो, 12:13 का रेशियो. This is the ratio. Okay. चलो let's start. Number of men in marketing is, marketing में total कितना है? I am again saying please don't find the numbers guys. Screw this number. For now screw it. 3250 भूल जाओ. Total number of men in marketing इधर है 22 and marketing का ratio क्या है? 5:2. Sorry, 3:5. Total men. So this will be how much? 22 by 100 into 3 by 5. इस पे लेना पड़ेगा into 3250. So पहले हम सीधा इसको how much? 65 and 65, 11 and 13. So 33 into 11. Tell me how much will it be? Sorry, 33 into 13. What will be the last number? 9. 9 वाला कोई option है? Do we have any option which says 9? Guys? नहीं. So the answer has to be none of these. समझा तुम लोगों को? मैंने स्टिल कैलकुलेशन काफी कुछ स्किप कर दिया बिकॉज मैंने इसको मल्टीप्लाई किया ही नहीं. आई स्ट्रेट अवे टुक द लास्ट डिजिट ओनली. लास्ट डिजिट वाला कोई नहीं है तो अपना ऑप्शन है ही नहीं. समझे गाइस? ओके. नेक्स्ट वन. द रेशियो ऑफ वुमेन इन एचआर टू मेन इन आईटी डिपार्टमेंट इज, द रेशियो ऑफ वुमेन इन एचआर, एचआर में कितनी है? 10% एंड उसमें मेन एंड वुमेन का रेशियो कितना है? 13:12. So that will be 13 by 25 into 10 divided by women in HR to men in IT department. Men in IT, that is 7 by 10 into IT का टोटल कितना है? 16. चलो कट करने लगता है. बोलो क्या क्या कट हो जाएगा? You can also write this as, what can you write this as? Into 10 और ये नीचे वाला हटा दो एंड ये 25 नीचे आ जाएगा. ये समझ रहे गाइस तुम लोगों को? into 2 into 5, 26 by 35. Is that an option for us? No, there is not. समझा तुम लोगों को guys? Did you understand this sum? It's a very simple calculation. अच्छा मैंने उल्टा किया. वेट, आई चेक अगेन. शायद तुम लोगों को एक्सप्लेन करने में थोड़ा मेरा गलती हो गया. वुमेन इन एचआर डिपार्टमेंट, दैट इज 13 by 25 into 10 डिवाइडेड बाय, सॉरी मल्टीप्लाई कर दूंगा सीधा, मल्टीप्लाइड बाय आईटी डिपार्टमेंट में मेन इन आईटी डिपार्टमेंट, दैट इज 7 by 10 डिवाइडेड बाय 16. हाँ 16 ऐसा आएगा ना? सही है. इंटू 2 इंटू 2 ये आ जाएगा 4. 13 by 28. सॉरी माय बैड, दैट्स ऑप्शन 3. समझा तुम लोगों को?
again without calculating. We are still not using this 3250. Okay, तो जितना हो सके कम यूज करो. Don't try to get into big numbers. You get into big numbers, calculation mistakes immediately होना चालू हो जाते हैं. Calculation mistakes चल जाएगा, but तुम दिमाग को थका नहीं सकते. Do you understand why I'm saying this? It's fine if you make calculation mistakes. It's fine if you get the wrong answer. But what you can't afford is to get tired. समझा तुम लोगों को? Why am I saying this? Only because one thing. CET is not about time management. CET is about stress management. This is my concept, and I hope you guys understand this, because nobody else will tell you this. कि CET is more about stress management than time management. Okay? चलो. Let's move on. The number of men in production as a percentage of total number of employees in that department is, ये तो बहुत सारे चेंज है. That is 4 by 5. That is 80%. 80%. कुछ करने की जरूरत नहीं है. The number of men in production as a percentage of the total people in that sector. We already know the ratio of men is to women, ना? So that will be 80%. 4 by 5. बाकी कुछ करने की जरूरत ही नहीं है. ये तो कुछ ज्यादा इजी हो गया, राइट? समझा सबको ये? Did you understand, guys? चलो 19th one. The number of women in IT as a percentage of total number of employees is, it's pretty simple. We will do a 3 by 10 into of what? IT 16. 3 by 10 of 16% कर लेंगे, because 16 is already a percentage of the whole, ना? So we have to straight away do 3 into 1.6. That is how much? 4.8%. समझे guys? Did everybody understand this? ये समझा सबको guys? Did everybody understand the sum? All 4 sums? Hello, let's move ahead. There's also 20th sum. Total number of women in the organization is. तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? For this, we will have to find each and every women का रेशियो हमें डालना पड़ेगा in each and every one, and हमें सबका टोटल निकालना पड़ेगा. Tell me, is this worth doing? How much calculation is that? That is 7 steps of calculation. 7 steps. For a sum जिधर मैंने almost 2 मिनट में 4 मार्क्स निकाल दिए. Can I afford to put in 2 more minutes to just score 1 more mark? Can I? Exactly. सॉल्व करने के लिए तो हम कर दे, बट फायदा नहीं है सॉल्व करके, उसमें उल्टा नुकसान है अपना. Exactly. So the best option here is leave. Every other question was a A type. The last one was a C type. Guys, let's move on to the next one. Did everybody understand the previous set? सबको समझा क्या clearly? And guys, I'm not bullshitting you. This is legit CET level. If you guys actually calculate these sums, तो तुम्हें time लगेगा.
लोगों को करता है। इसमें भी वैसा ही कर देता है, मैं सारे क्वेश्चंस को है ना बाजू में ले लेता हूँ। ओके गाइस, ये चलेगा सबको? आई होप नोबडी इज लुकिंग फ्रॉम द फोन। जो फोन में से देख रहे हैं उनको कुछ नहीं समझेगा। आई होप सारे लोग लैपटॉप में ही देख रहे हैं, लैपटॉप या फिर कंप्यूटर, एटलीस्ट सम पीसी स्क्रीन। धवल दिख रहा है तो अच्छा है। धवल तेरा तो फोन फोन बोलने लायक भी नहीं है, तू रहने दे। एवरी टाइम जब मैं तेरा सम चेक करता हूँ ना, तब मैं पागल हो जाता हूँ। चलो गाइस, लेट्स स्टार्ट। Now this is a calculation intensive DI. I can tell you from the start. This DI is a B type. You will see why. What is the difference between the total number of candidates who got selected in science and the number of candidates who applied for the same? Applications and qualifications. Science के qualifications कितने हैं? 24/100 into 14,000. That is 140 into 24. Tell me कितना आएगा? 140 into 24, बोलो जल्दी। है तीनों अलग अलग आंसर है और तीनों एकदम पोल्स अपार्ट। 3520, 8400 एंड 1360। अब मैं कौन सा मानू? जल्दी मुझे पक्का आंसर बोलो, इतना कैलकुलेशन में टाइम नहीं लग सकता गाइस। एंड द फनी थिंग इज 3 के 3 रॉन्ग है। यस धीरेन, यू आर राइट। द आंसर इज 3360। 3360 गाइस। 24 का टेबल मैंने तुम लोग सबको बोला है टेबल्स याद करो, और मैं थक गया तुम लोग को बोल बोल के। एंड यू हैव टू फाइंड द एप्लीकेंट्स ऑफ साइंस, व्हिच इज अगेन 22 into 880। 22 into 880 सॉल्व करो फटाफट। और इजियर वे टू सॉल्व दिस, सुनो ये सॉल्व करने का इजी तरीका है। दिस इज 2 into 11, दिस इज सॉरी 8 into 11, so 121 into 16 will be easier। that is 19360। 1982, हाँ 360। you have to find the difference। अब इसका डिफरेंस ढूंढना है। 19360 minus 3360, that is 16,000। समझ रहे हो गाइस? a very simple and plain calculation, but a calculation which you can't miss। कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। समझा सबको? चलो, सो अब तुम लोग को समझा मैंने क्यों बोला कि ये सब बी टाइप का है। दिस सम इज वेरी कैलकुलेशन इंटेंसिव, बट द थिंग इज इट इज वेरी इजी है, बहुत इजी, बहुत चिंदी है, बट सिर्फ कैलकुलेशन ज्यादा है इसीलिए। What is the sum of total number of candidates who applied for arts and the number of candidates who got selected in maths and English both? टोटल ढूंढना है ना, तो कैंडिडेट्स हु अप्लाइड फॉर आर्ट्स ढूंढ लेते हैं पहले। 17 into 880, 17 into 880 प्लस
द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु गॉट सिलेक्टेड इन मैथ्स एंड इंग्लिश बोथ. मैथ्स एंड इंग्लिश का टोटल कितना है? 38. सो दैट इज 38 इंटू 140. इसका एडिशन करो. चलो चालू हो जाओ. देयर इज नो अदर वे, देयर इज ओनली एडिशन. हाँ, नीचे वाला मुझे मिला 5320. ऊपर वाला कितना है? 14960. So now I have to just add these up. अरे जल्दी बोलो कितना आएगा? अरे दोनों लिखे हैं यहाँ पे, एटलीस्ट एडिशन तो कर लो गाइस. हाँ 20280 बराबर. Which will again be E, none of these. क्या तुम लोग बहुत ज्यादा स्लो हो गए क्या? थक गए क्या ऑलरेडी? आर यू गाइस ऑलरेडी टायर्ड? इसके बाद और सेट्स है. चलो. What is the ratio between number of candidates who qualified in arts and commerce together? हितेश डोंट बी वरीड अगर नन ऑफ दिस आंसर आ रहा है, इट्स फाइन. वो डरने का नहीं है, तो है. अब हम क्या कर सकते हैं? ऑप्शन ही वैसे दिए हैं एंड आंसर ही वैसा है. डोंट गेट वरीड व्हेन यू हैव नन ऑफ दिस एज एन ऑप्शन. इट्स ओके. What is the ratio between the number of candidates who qualified in arts and commerce together? Arts and commerce together is 24 upon 100 into 140 will have 14,000 divided by how much? And the number of candidates who qualified in English and science. अच्छा 34. Who qualified in English and science? इंग्लिश साइंस का टोटल कितना है? अच्छा ये 100 और 14,000 की जरूरत नहीं है, बिकॉज दोनों नीचे वाले सर्कल सही है, तो हमें सीधा रेशियो ढूंढना है. So this will be 34 divided by 52. Tell me how much will it be? Seventeen by 26. That's option C. समझा सबको? Guys, are you understanding? चलो, let's move ahead. What the percentage of candidates qualified in English of the total who applied for the same? Qualified in English मतलब हमें 28% of 14,000 ढूंढना पड़ेगा. 28 into 140 divided by the total applications into 100. Total applications कितने हैं? 24 by 880 into 880. 0 0 कैंसिल. अब थोड़ा कट वट करने की ट्राई करते हैं. 4 into 22, 4 into 7. अब थोड़ा अप्रोक्सीमेट करने की ट्राई करते हैं. चलो गाइस लेट्स अप्रोक्सीमेट. इसको into 3 कर दो, बाद में इसको into 5 कर दो. टेल मी गाइस हाउ विल दिस अप्रोक्सीमेशन वर्क? ये 3 से थोड़ा ज्यादा है एंड ये 5 से थोड़ा कम हो जाएगा, राइट? सो दैट इज वाई इसको 5 ले सकते हैं. तुम लोग समझ रहे हो मेरी अप्रोक्सीमेशन की ट्रिक गाइस? आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? ये 7/3 से थोड़ा कम है, तो ये इसीलिए दिस इज लेस देन 3. तो अगर ये 3 होता तो इंटू 5 होता ना.
बट ये इंटू 5 से कम है, बट ये भी 3 से कम है, सो दैट इज वाई इंटू 5 विल फिट योर प्रॉपरली। समझ रहे हो तुम? हाँ गाइस, ओके। अरे इसमें वैल्यूज बहुत नजदीक नजदीक है, छोड़ो। वी विल ट्राई अप्रोक्सीमेटिंग इन अ डिफरेंट वे, थोड़ा ज्यादा सटल अप्रोक्सीमेशन करता है। ये 22 तक तो प्रॉपर आया है। इसके बाद लेट्स डू 2 into 12, 2 into 7। ये अब करने लगता है। 4 into 3, 4 into 25। अब इसको into 3 ले लेते हैं, एंड दिस विल बी into 8। तो भी कुछ तो अलग आ रहा है, कुछ तो लोचा ही हो रहा है। रुको गाइस, लेट्स कैलकुलेट अगेन। दिस इज हाउ मच, 28% ऑफ 14,000। 28 into 140 divided by 24 into 880 into 100। सही है? ये दोनों कैंसिल। 4 into 7, 4 into 22, 2 into 7, 2 into 11। अब तो कैलकुलेशन ही काम आएगा, बाकी कुछ नहीं। we'll have to do 49 upon 24 into 11। सो इसको into 4 कर देते हैं, एंड ये हो जाएगा 4.5। सो we'll have to do 4.5 into 4। 4.5 into 4 कितना आ जाएगा? 4.5 into 4 is, बोलो गाइस। यस 18, तो 18 से थोड़ा ज्यादा होगा। 18 से थोड़ा ज्यादा वाला कौन सा है? ऑप्शन डी। आई गेस दैट इज द ओनली ऑप्शन दैट वी कैन टेक सेफली। एंड डू यू अंडरस्टैंड व्हाई 18 से थोड़ा ज्यादा होगा? व्हाई विल इट बी ग्रेटर देन 18? समझ रहा है तुम लोगों को गाइस? व्हाई विल इट बी ग्रेटर देन 18 एंड नॉट लेस देन 18? अरे कोई रिप्लाई दो। हाँ गुड। समझ रहे हो गाइस? चलो लेट्स मूव अहेड टू द फाइनल वन ऑफ दिस सेट। Find the average number of candidates who got selected for English, Arts and Science. English, Arts and Science. Will you find the number of all three and then find the average? हाँ, तुम लोग तीनों का नंबर ढूंढ के बाद में एवरेज ट्राई करोगे, और यू स्ट्रेट अवे ऐड द परसेंटेजेस। सीधा परसेंटेजेस को ऐड करो एंड डिवाइड बाय 3 करो। परफेक्ट, एग्जैक्टली। चलो एटलीस्ट समझ रहे हो लोग, आई एम हैप्पी। दैट विल बी 38, 58 and 60, 66। 66 by 3 into 140, that is 22। 22 into 140 is how much? 2800 into 280, 3080। अरे अरे अरे, इंग्लिश साइंस आर्ट्स। हाँ इंग्लिश साइंस आर्ट्स। अच्छा तो मैंने ऑप्शन ही कुछ तो गलत डाले। माय बैड गाइस, ऑप्शंस थोड़े गलत है इसमें, बट द आंसर इज दिस, दैट इज 3080। ओके, डिड यू गाइस अंडरस्टैंड हाउ वी गॉट 3080?
चलो ग्रेट, move on to the next one. Now guys, this is the final one and this is the most calculation intensive one today. इसमें सबसे ज्यादा calculations है आज. Okay? Are you ready? Or do you guys want to try it by yourself? बोलो जल्दी. Okay, if you guys want to try this by yourself, let's keep this as homework. Send me the answers जैसे तुमने कल के DI लास्ट वाले DI में तुमने मुझे टाटा वाला जो सम है उसका आंसर्स भेजा था, उसका ये इसी तरीके से मुझे इसका भी आंसर्स भेजना. This has 5 questions again. Okay? चलो, इसमें very carefully understand. In this there is one clue. One sum can be very simply solved by only looking at the graph. Actually, 2 sums can be solved by just looking at the graph out of the 5 sums. Don't find the numbers. I'm saying don't find the numbers for all the sums. Look very carefully at the question and बाद में ही sum करो. Okay? चलो. I guess today's lecture ended early. हेमंत, आई वोंट से कि कौन सा वाला, दैट यू हैव टू फाइंड आउट. आई वोंट से कि ये क्लू किस पे अप्लाई होता है. यू हैव टू डू इट योरसेल्फ. चलो, चलो, इफ पीपल वांट तो मैं अभी सॉल्व कर देता हूं. ओके, आई एम गोना सॉल्व इट राइट नाउ इफ पीपल वांट दैट. चलो, during which of the following years was the total sale of 3 products the highest, the second highest? इसमें बोलो मुझे कैलकुलेशन करने की जरूरत है क्या? Do I have to calculate for 26th? I have to visually see the sum only. ये देखो सबसे हाईएस्ट किधर होगा जिसमें तीनों का ओवरऑल सबसे हाईएस्ट है. सबसे हाईएस्ट इज 2013 एंड उसके बाद ये देखो बाकी सब में इसमें एक ज्यादा है पर बाकी दोनों छोटे हैं. इसमें ये दोनों बहुत छोटे हैं. दिस हैज टू बी द सेकंड हाईएस्ट विदाउट कैलकुलेशन. गाइस ट्रस्ट में तुम्हें सीईटी में ऐसे सम्स आएंगे. प्लीज स्ट्रेस के अंडर तुम लोग ये सम सॉल्व करने मत बैठना. स्ट्रेट अवे मार्क द फिफ्थ वन, ऑप्शन 5. What is the difference between the total sales quantities of 2009 and 2011? 2009-11 का देखो 250, 240, 490. 490 प्लस ये कितना है 180. 490 प्लस 180 that is how much 670. एंड इसका कितना है 11 का 11 का इज 23 230 230 plus 160 that is 390. 390 plus 280. 390 plus 280 कितना हो गया 650. Tell me what is the answer. मतलब मैंने ही बता दिया पर ठीक है. अच्छा 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 देखा स्मार्ट लोग. अरे 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 670 आएगा वापस. मैं तो तुम लोग को टेस्ट कर रहा था. आई वाज तो टेस्टिंग यू गाइस. देखा हर बार तुम्हें फंसते नहीं हो ये बात में. अच्छा है. विपुल मैं सर मैं बाहर ही दे सकता हूँ तुम लोग नहीं दे सकते.
Okay, so let's move on to the 28 jokes apart. For which year the product X shows the highest percentage growth in sales over that of the previous year? Okay, now guys, this is the most prime example of a sum where idiots will solve it. You do not have to solve it. This is absolutely visually solvable. Now tell me in a graph, ये है 10, 20, 30, 40 and ये है 50, 60. In 2009, in 2001 मेरा 1 to 2 ग्रोथ हुआ, तो 1 से 2 तक ये 5 साल है. 1, 2, 3, 4, 5. In 2 से 3 I had a 2 से no growth. In 3 से 4 I had 1 का ग्रोथ. एंड इसमें ये टेल मी मेरा हाईएस्ट ग्रोथ कहां पे है? वेयर इज माय बेस्ट ग्रोथ? माय बेस्ट ग्रोथ इज इन विच ईयर? थर्ड. I went from 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Okay? Vaishnavi, tell me how the third. In the third, I am going from a 2 to a 3. Here is a 2, here is a 1. And here is a 3 again. Here is again a 3. Now guys, understand this very carefully. Growth is always in terms of percentage. Growth is never absolute. It's always in terms of percentage. इधर मेरा percentage growth कितना है? What is my percentage growth here? 100%, exactly. And what is my percentage growth here? Although मेरा absolute growth कितना है? 1 unit. मेरा 1 unit का absolute growth है. But यहाँ पे मेरा percentage growth is only 50% growth. So that is why growth in lower places is much better than growth in higher places. मतलब अगर मैं नीचे से उतना ही ऊपर आ रहा हूं ना, तो यहां से मैं उतना ही ऊपर जाऊंगा is very different. नीचे वाला growth is better. समझ रहे हो मेरी बात? Do you guys understand? This is something that most people screw up in, क्योंकि उनको ये वाला लॉजिक पता ही नहीं चलता है. अब बताओ 28 का आंसर क्या होगा? फॉर विच ईयर प्रोडक्ट एक्स shows the highest percentage growth over the previous year? बोलो जल्दी. एग्जैक्टली 2008. क्यों? यहां पे मेरा 500 का ग्रोथ है ओवर 1500. यहां पे भी मेरा 500 का ग्रोथ है, बट अंडरस्टैंड कि ये 500 का ग्रोथ इज ऑन 250 एंड यहां पे 500 का ग्रोथ इज ऑन 150. समझ रहे हो मेरी बात? ये समझा सबको? नाउ टेल मी, डिड दिस वन रिक्वायर अगेन कैलकुलेशन एट ऑल? इसमें कैलकुलेशन की जरूरत पड़ी? एग्जैक्टली, विजुअली सॉल्वेबल. चलो लेट्स मूव अहेड. For which year product Z shows the highest percentage change in sales over the previous year? Understand very carefully guys. यहां पे हमें पूछा है ग्रोथ. ग्रोथ मतलब पॉजिटिव ही होना चाहिए, ग्रोथ में नेगेटिव नहीं चलेगा. यहां पे हमें पूछा है परसेंटेज चेंज. चेंज इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, समझ रहे हो मेरी बात गाइस? चेंज का मतलब नेगेटिव भी हो सकता है. चलो, yes, change can be both positive and negative, but growth can only be positive. Now find the answer to the 29th one. Where is the highest one? So I'm getting two answers, 2008 and 2009. So at least I'm glad you guys are near it. Whoever is wrong is at least nearby and not far away. 2008 में growth कितना है? 5/20.
2009 में डिक्रीज कितना है? 7/25। सीधा क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। समझ रहे हो? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 140 and 125. Which one is higher? Higher one is, अब बोलो किसमें परसेंटेज चेंज हाईएस्ट है? एग्जैक्टली 2009। समझा सबको? अरे अरे इसमें ऑप्शन ही नहीं है। सॉरी माय बैड अगेन, ऑप्शंस में बनती है। आई चेंज द ऑप्शन। The answer is 2009. Okay. समझा सबको गाइस? चलो लेट्स मूव। Every year 30% products of X and 40% of product Y are exported. What is the total quantity exported during the period from 2007 to 2013? Tell me, which category is this? ये कौन सी कैटेगरी में आएगा? दिस इज अ क्लियर सी कैटेगरी टाइप, बिकॉज इसमें क्या करना है, इसमें मुझे झक मार के सबका ढूंढना पड़ेगा। और व्हाट आई कैन स्टिल वेरी सिंपली डू इज, मैं सबका टोटल निकालू। आई विल हैव टू फाइंड द टोटल ऑफ ऑल एक्सिस, बिकॉज एवरी ईयर 30% ही एक्सपोर्ट हो रहा है ना, तो मैं सबका टोटल निकालूंगा एंड बाद में उसका 30%, 30% ऑफ एक्स, ओवरऑल एक्स एंड 40% ऑफ वाई। समझ रहे हो? इसमें क्या होगा, मुझे सब एक्स वालों का एडिशन करना है, उसका 30% ढूंढना है, एंड वाई वालों का एडिशन करके उसका 40% ढूंढना है। समझ रहे हो? एंड बाद में इनका एडिशन करना है। डू यू गाइस अंडरस्टैंड दिस? But still this is a lot of calculation for a sum to be solved in CET. So that is why this is a big C type question. Okay? समझा सबको? Okay. If there is any more doubt, then tell me. Now guys, I hope that everybody has understood everything.